Hello, friends. We welcome you to an interview with Kishan, who has scored only rank 7 in this year GATE exam. And very congratulations, Kishan, for this achievement. And Thank you, sir. first of all, we'd like to, start by asking ki you should please tell us about yourself, your background, and your journey till this point. Uh, my journey is like a little regular student, IIT student. I cleared IIT in 2013 and got integrated geology in IIT Arizona. After that, I studied for 5 years. Then there was like placement for like geology students. At that time, I like when I was graduating in 2018, I gave GATE as an to see like I can clear it or not. Yeah. So after that, I found out that GATE is the only option. GATE or some other government is an only option for a government to join a government organization after college. So I seriously started preparing for GATE after 2018, and I gave a GATE in 2019 also, and scored AIR 80. But I didn't go through the whole the process. I missed the ONGC by 0.02 marks. After that, I reattempted GATE in 2020 and scored AIR 7. That's all. Okay. Congratulations on that. So, can you share your strategy with the aspirants who will be targeting for GATE 2021? Any Yeah, strategies you specifically followed to improve your rank from 80 to 7? Because this is a huge jump, right? So, can you yeah, share some strategy? yeah. For me, the problem was I don't have any problem in numericals and general aptitude. For me, problem was only that in remembering stratigraphy and paleontology Hmm. and mineralogy. This thing I had faced the most problem in remembering those things. My numerical was good because I'm from mathematics background. My aptitude was also good. I needed help only those subjects in which I have to lot of crammings and a lot of ratamar things. So for the improving the rank in 2020, I focused on those subjects. Like I analyzed on my 2019 what where I went wrong. So I found that my stratigraphy and paleontology and mineralogy, these subjects are quite weak. So I focused on those subjects only, and that was my whole. When I started preparing now, I first I go through the all 20 years paper. What is the like what GATE wants to learn. Okay, so I learned from the paper that they don't want you go deep in everything, but they want you like what you are reading now. You should be perfect in that. If you are reading a time scale of geology, you should know everything about the time scale from the eras to epochs to their ages also. Some important ages is there. Some aspirants miss that thing. They don't remember ages, but there is a thing that in Cretaceous there is some important ages that you should remember. GATE wants to know that you are focusing on those things or not. The GATE goes for very little things from winter or from bills. They focus on those things. That was my Correct, correct. strategy. I So, pointed out the small things from the previous yes, examination, and true, I yes. worked on that. So all the aspirants are also in the same shoes. जो आप बता रहे हो ना कि ये हाँ, याद करने में दिक्कत होती है, तो ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिनको ये याद करने में डिफ़िकल्टी होती है, तो उसके लिए कुछ खासकर ये आप ट्रिक्स स्टैटिग्राफी शेयर और कर सकते हो? पेलेंटोलॉजी वाला पार्ट है जिसमें हाँ, याद करने का मतलब कोई अंत ही नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा-सा उसमें इलैबोरेट ज़्यादा कर सकते हो कि स्टैटिग्राफी, पेलेंटोलॉजी कहाँ से पढ़ा, क्या हाँ, आपने याद करने के लिए तुमने लिख-लिख के याद किया है या तुमने बार-बार उसको रीड किया है? तो तुम्हारा मैंने स्ट्रैटेजी कैसा? लिख लिख के याद किया है, क्योंकि द गेट का क्या है कि वो ना लिमिटेड नंबर ऑफ चीजें पूछता है। आप स्ट्रेटिग्राफी एनालाइज करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि अगर आपने पढ़ा है ना तो कर पाओगे, और नहीं पढ़ा है ना तो आप कुछ भी कर लो, नहीं कर पाओगे आप सीधा। जैसे एक सवाल था वर्कला जो मियोसीन का 2 साल पहले एक सवाल आया था जिसमें पूछा गया था कि वर्कला केरला किसकी बाउंड्री शो करता है? वो हुँ, मैंने नहीं पढ़ा था। वो डायरेक्ट क्वेश्चन था, आप कर पाओ आपने पढ़ा होगा तो कर पाओगे। इट्स लाइक वहाँ मोस्टली से चांस सॉल्व ये नहीं कर होता है सकते कि उसको। अगर हाँ, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप कुछ भी कर लो, यू कांट डू इट, है ना?
मतलब द थिंग इज दैट कि अगर वो स्ट्रेटिग्राफी के 3 सवाल देते हैं ना, तो 2 सवाल ऐसे देंगे कि बड़ा जनरल से होंगे वो, हम्म, कि तुमको आने चाहिए अगर तुमने स्ट्रेटिग्राफी कहीं से भी पढ़ा है, आपने बांगर से पढ़ा है या फिर जीएम पात्रा से पढ़ा है या फिर आपके कॉलेज स्कूल में पढ़ा है, या वो बड़ा बड़ा जनरल सा देंगे, 3 सवाल में से 2 सवाल और 1 सवाल हार्ड देंगे वो कि यू हैव टू बी वेरी डीप इन स्ट्रेटिग्राफी टू आंसर दैट। तो उनका ऐसा रहता है, तो मैंने याद करने के लिए मोस्टली ना लिख-लिख के किया है और मैंने टाइम वाइज़ सबको क्लासिफिकेशन, जैसे जनरल क्लासिफिकेशन होता है ना कि केएम बागन में देखेंगे तो आप उन्होंने टाइम वाइज़ कर रखा है, महापात्रा में देखेंगे तो उन्होंने टाइम वाइज़ कर रखा है, मैंने लोकेशन वाइज़ किया है। हम्म, जैसे हिमालय का मैंने पूरा प्री कैम्ब्रियन से लेके और मियोसिन तक और जिसमें जहाँ तक एंड होती है बाउंड्री, उसका मैंने लोकेशन वाइज़ बना के याद किया था। हम्म, हिमालय का पूरा स्ट्रैटिग्राफी ये है, हम्म, राजस्थान की पूरी स्ट्रैटिग्राफी यहाँ से यहाँ खत्म होती है और बस्तर की पूरी यहाँ से यहाँ खत्म होती है। मैंने ऐसे किया था, मैंने टाइम वाइज़ नहीं किया था और मैंने सबके लोकेशन पूरे इंडिया के लिख लिए थे सबके और वो नोट्स की तरह मैंने पेपर पे बना लिया और मैं रोज़ 1 पार्ट कवर करता था। जैसे ईस्टर्न इंडिया कवर करना है तो सिंहभूम, ईस्टर्न घाट्स मोबाइल, असम कवर करता था 1 दिन। मैं मतलब डेली रिवीजन करता था, डेली। इन सब चीजों में डेली ऐसे मैंने रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये याद करने हाँ। की चीजें हैं, आप एक बार में कर भी नहीं सकते। हाँ, और द थिंग इज़ दैट कि ना आप जैसे सोचते हैं ना कि मैं लास्ट में इसको कवर कर लूँगा, तो बहुत गलत सोचते हैं ये लोग कि इसको लास्ट में नहीं कवर कर सकते। आपको शुरुआत से ही खुद के नोट्स बनाना बड़े ज़रूरी है, क्योंकि आप जब नोट्स बनाते हो ना, तो आपके दिमाग में थोड़े-थोड़े पॉइंट्स रह जाते हैं और वो ना एग्ज़ाम के टाइम पे काम आते हैं, बहुत ज़्यादा काम आते ये राइट। बहुत ही यूज़फुल टिप्स है स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज़ यूजुअली व्हाट दे डू, दे विल बी प्रोक्रास्टिनेटिंग दैट जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम हैं। हाँ, 15 days or 10 days before I'll be able to cram all the things. So they हाँ, they usually You leave all you have this to leave this part. table which फिर हो needs to नहीं be पाता। remembered हाँ, for the last duration. But ऐसा नहीं करना चाहिए. So this is a very useful tip कि regularity is very important and daily discipline is important. अगर daily आधा घंटे भी if you are giving time to a specific topic, उसको तो आप ज़्यादा अच्छे से आपको याद कर याद करना सकते भी हैं नहीं पड़ता, compared आप to एक बार पढ़ लो उसको बस। तो फिर डेली अगर आप पढ़ भी रहे हो तो वो एक तरह से याद ही हो जाएगा कुछ दिन में। हाँ, और द थिंग इज़ दैट जब आप नोट्स खुद बनाते हो ना, तो आपको याद रहता है कि इसके ऊपर क्या लिखना है। इसके ऊपर मेमोरी में अपने जैसा मेमोरी प्ले हाँ, वो पैलेस खुल होता है जाता ना, है एकदम, आपको वैसा तभी कुछ बन लगता है जाता कि है। ये हाँ। लिखा था मैंने। ये लिखा था मैंने। वो आपके लिखे हुए से ज़्यादा रहता है। आप ऑनलाइन बहुत सारे वो ऐसी चीज़ें हैं जिससे बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं, मेमोज़ होते हैं, उनसे आप याद कर सकते हो, बट आप जब खुद लिखते हो ना, तो आपके मेमोरी में प्लेस हो जाती है वो चीज़। हुँ, तो ये डिसिप्लिन होना चाहिए आप में। हाँ, अच्छा, अच्छा, जैसे इसमें क्या होता है कि लाइक एनी अदर एग्जाम, यूजुअली व्हाट हैपेंस विद एस्पिरेंट्स इज दैट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेज देयर विल बी टाइम्स व्हेन दे फील डिमोटिवेटेड. सो you might also have felt like this in the preparation phase. So how did you tackle that? I will like my strategy for everything now, for every examination, for anything what I ever want to achieve now. I just this is the path and I have to stick to it. Whatever comes in path, I feel demotivated. Some days I feel angry with myself. What's happening? I'm not getting it through. I just sleep it out, and tomorrow I can start with my discipline. If I made a schedule now that this time I have to do this, I will do this only. I stick to the schedule very strictly so you because religiously you discipline, follow the schedule despite being feeling कुछ भी आपको लग रहा हो whatever I am तो feeling, yeah, I just suppress it. I strictly adhere to the schedule because I think that discipline comes from discipline. If you like yeah, you are thinking that it is like 6 months ago, I can go to the movie. It's okay. It's okay in 1 month to take a day out and relax yourself. But my thing is that until and unless you attempt you win that goal, na, it's a it's a here or there. okay, Either you either are you will in or cross you the will borderline, fail. you fail. That's my strategy. I strictly adhere whatever. Like some days now, I was so frustrated. I even throw my computer. again, I again I start with the same thing in the morning. I bring my और ऐसा computer. I होता है, take लेकिन बस ये है कि पिछले दिन को भूल के आप नए दिन को एकदम uh, उस तरह से लो। So every day is a new day, every day is a new opportunity. So this is a very yeah, yeah. important thing क्योंकि discipline is not something which is just to follow the clock. Discipline में ये ups and downs को
फाइट करते हुए पता जाता है। My everything, like if I'm demotivated, sad, my medicine is sleep. I just focus on my sleep for like eight Okay, to so nine you hours, have and always in have the a good morning. sleep और you आप refresh होके उठते हो? Oh, okay. हाँ, sleep मेरा दवा है। जैसे मेरे को अभी 12 बजे से ऑनलाइन वर्क करना है, तो मैं ना दिन में सोता हूँ, 3 बजे सो जाता हूँ और मैं फ्रेशली उठता हूँ, फिर काम करता हूँ अपना, फिर सुबह सो जाता हूँ। नहीं नहीं, ये अच्छा है। मतलब डिसिप्लिन होना हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है आपके हिसाब से, और विच जो हुँ, है भी। क्योंकि ग्रेड अगर हाँ, देखा जाए तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि मतलब कि आप नहीं कर सकते मेहनत करके, बट लोग डिसिप्लिन लैक करते हाँ, डिसिप्लिन लैक ये मान सकता हूँ। जैसे जो बंदे बाहर रहते हैं ना घर से, उनको डिसिप्लिन बनाना ज़्यादा ईज़ी रहता है। आप मैं एडवाइस तो यही करूँगा कि आप घर से थोड़ा दूर, आप 4 ब्लॉक भी दूर रह के ना अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन कर सकते हैं। हैं। दिस इज अ वेरी गुड मतलब थोड़ा हार्ड हो, हाँ, अपने थोड़ा थोड़ा अपने आप के ऊपर हार्ड होना पड़ेगा आपको। थिंग, राइट। तो कैन यू ऑल्सो हाइलाइट कि ऐसे क्या पिटफॉल्स होते हैं यूजुअली एस्पिरेंट्स के लिए, या आपके कलीग्स में भी आपने देखा होगा, आपके साथ के स्टूडेंट्स में भी, हुँ, जिनकी हुँ। रैंक थोड़ी पीछे आई है, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि उनने क्या क्या गलतियाँ करी हैं? गलतियाँ कर देते हैं वो लोग, जो आपको लगता है कि गलतियाँ तो डेफिनेटली अवॉइड हाँ, करना चाहिए? डेफ़िनेटली गलतियाँ तो ये अवॉइड करनी चाहिए। मैंने कई पेरेंट्स को देखा है कि एप्टीट्यूड है, हो जाएगा, इट्स कूल, बट गेट का एप्टीट्यूड ऐसा होता है कि यू हैव टू प्रैक्टिस अ लिटिल बिट, और वो बड़ा कंसाइज़ देते हैं। वो पीएनसी से, प्रोबेबिलिटी से सवाल देते हैं, और जो बाकी होते हैं वो बड़े नॉर्मल होते हैं। जैसे उसमें 10 क्वेश्चन्स होते हैं ना, तो उसमें 3 क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं कि थोड़ा-सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप वो कर सकते थे। हुँ, वो ऐसा सोचते हैं कि जैसे जीएसआई का एग्ज़ाम होता है, और जैसे यूपीएससी के और दूसरे स्टेट एग्ज़ाम होते हैं ना, वो बड़े नॉन न्यूमेरिकल बेस होते हैं। हुँ, उनमें डायरेक्ट सवाल होता है। जैसे ओपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर, आपको याद होगा तो, उसमें डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल पूछा गया था। तो गेट का वैसा स्ट्रैटेजी नहीं होता, आपको थोड़ा ना न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे पिछले 3 साल से वो न्यूमेरिकल्स पे आई जो आईआईटी गेट के पेपर बना रहे हैं, वो न्यूमेरिकल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जो इस साल भी थे, जैसे मेरे 2 दोस्त थे, उन्होंने बस वो न्यूमेरिकल्स में ना, मतलब न्यूमेरिकल्स बहुत ईज़ी थे, पर उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया था, वो आउट ऑफ प्रैक्टिस थे। तो वो उतना अच्छा नहीं कर पाए, वो बहुत छोटी-छोटी मिस्टेक कर रहा है। जैसे मेरा एक दोस्त था कनिष्क, यहाँ पे पीएचडी कर रहा था मेरे साथ, वो उसके साथ पिछले साल रैंक थी 37, वो बड़ा ईज़ी था, कूल था कि भाई ईज़ी था, सब कुछ हो जाएगा। उसने अपने आप को आउट ऑफ प्रैक्टिस कर दिया थोड़ा न्यूमेरिकल से, तो इस साल वो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाया। तो जो गेट के न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो बड़े कंसाइज़ होते हैं, आपको ना प्रैक्टिस करके उनका कांसेप्ट याद कर लेना चाहिए, क्योंकि गेट का न्यूमेरिकल्स +2 या +- जाते हैं उस टॉपिक से, उससे ऊपर-नीचे नहीं जाते हैं कभी। राइट। जैसे आप मान लीजिए इंजीनियरिंग जियोलॉजी से सवाल आया कि लॉस अब्रेशन टेस्ट क्या है? हुँ, तो अगर उनको अगली बार इंजीनियरिंग जियोलॉजी से सवाल देना होगा ना, तो उस टेस्ट के 2 ऊपर टेस्ट का सवाल देंगे, या उस टेस्ट के 2 नीचे, किसी भी स्टैंडर्ड बुक से। जैसे उन्होंने पिछली बार जो सवाल दिया था, वो बेल से दिया था, बेल इंजीनियरिंग जियोलॉजी की बुक है, जो आईआईटीज़ में रिकमेंड की जाती है। हुँ, तो उन्होंने 2018 में जो सवाल दिया था डायलेशन का, उसके 2 टेस्ट नीचे छोड़ के लॉस अब्रेशन का टेस्ट था। हुँ, तो बड़ा स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो जैसे न्यूमेरिकल्स के लिए आपको मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, जो मैन पिटफॉल्स होता है ना, लोग क्रैमिंग को लास्ट में रखते हैं और न्यूमेरिकल्स को पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने बिल्कुल इसका उल्टा किया था। मैंने क्रैमिंग पहले कर ली थी, तो रिवीजन करने में मेरे को दिन का 2 घंटा लगता था, जो भी रटने का होता था। मिनरोलॉजी, क्रिस्टलोग्राफी के जो नंबर्स होते हैं, हुँ। तो उसके बाद वो 2 घंटे के बाद फिर मैं न्यूमेरिकल्स करता था, क्योंकि मैं जानता था कि आजकल गेट ना चेंज कर दिया, वो डायरेक्ट सवाल बहुत कम देता है। अगर आप इस साल का भी पेपर एनालाइज़ करेंगे ना, तो इस साल के न्यूमेरिकल्स पेपर में तो उन्होंने न्यूमेरिकल मतलब बहुत ज़्यादा आ गए बहुत थे। ज़्यादा थे। हाँ, तो सेम 2018 में था, कम थे इसके मुकाबले, पर थे न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल मैंने का गेट ही स्ट्रैटेजी पहले बन गया है कि न्यूमेरिकल तो आते ही हैं। हाँ, तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी उल्टी कर दी पूरी। पहले मैंने पूरा रट लिया, फिर मैंने न्यूमेरिकल्स रट लिए, फिर उनके जो फ़ॉर्मूले होते हैं, उनकी लिस्ट बना लीजिए। आज तक जितने भी गेट के एग्ज़ाम में फ़ॉर्मूले यूज़ हुए हैं ना, उनकी लिस्ट बना लीजिए और वो देखिए वो कहाँ से उठाए गए हैं फ़ॉर्मूले। मतलब आप थोड़ा सर्च करेंगे ना, जैसे किसी भी बुक को, किसी भी स्टैंडर्ड बुक को, तो आपको पता चल जाएगा फ़ॉर्मूला यहाँ से उठाया गया। तो उसके ऊपर का 2 फ़ॉर्मूले, उसके नीचे के 2 फ़ॉर्मूले, बिल्कुल याद कर लीजिए, और गेट में आया हुआ हर एक फ़ॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। जैसे अभी इस साल लिक्विड लिमिट का जो टेस्ट उन्होंने पूछा था ना न्यूमेरिकल, उसको लिपिड उन्होंने इंडेक्स। 2000
हाँ, लिक्विड लिमिट इंडेक्स का पूछा था, जो फ़ॉर्मूला उन्होंने यूज़ किया था ना, वो उन्होंने 4 साल पहले एज़ ए 1 नंबर के सवाल में डायरेक्ट फ़ॉर्मूला पूछा था। एक्स की तो वैल्यू वो पूछी थी उसमें, राइट? हाँ, एक्स की वैल्यू पूछी थी, तो वो उन्होंने इस साल एज़ ए न्यूमेरिकल डाल दिया। राइट, तो राइट। मैं हाँ, तो ये पिटफॉल होगा कि ये मत सोचिए कि उनके स्टैंडर्ड सवाल हैं, पर गेट में जितने भी फ़ॉर्मूले यूज़ होते हैं ना, वो सारे होने चाहिए। और मैक्सिमम पिटफॉल्स तो लोग एप्टीट्यूड को अवॉइड करते हैं, वो सोचते हैं कि भाई हो जाएगा। इट्स नॉट हो जाएगा, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उसको भी। वो 15 नंबर कैरी करता है और गेट में हर एक नंबर आप अपना ड्रीम मिस कर सकते हैं। मैं 0.02 से अपनी प्ले जॉब मिस कर गया हूँ एनजीसी की। वही तो एक आप सोच न्यूमेरिकल सकते के हैं कि आधे में मतलब एक न्यूमेरिकल से आपका हो जाता है आराम से, एक हाँ, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन। और राइट, राइट, सही कह रहे हैं। और जब भी आप न्यूमेरिकल दिस इज वेरी सॉल्व कर रहे इम्पोर्टेंट हो ना एग्ज़ाम कि में। हाँ, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट कि आपको फॉर्मूलेज आपके पास कंपाइल्ड होने चाहिए एंड इट इज़ अ हाँ, गुड न्यूज़ फॉर आवर स्टूडेंट्स आल्सो बिकॉज़ हम लोगों ने ये जो मेहनत है ना सब सारे फॉर्मूलेज कंपाइल करने की और ऐसा हुँ, ना हो जाए कि कोई फॉर्मूला छूट जाए, सो वी हैव कंपाइल्ड ऑल द फॉर्मूलाज इन अ फॉर्म ऑफ अ पोस्टर, so the students can हाँ, paste this poster and then try to write it themselves so that they remember it better. अब तो हम उनको हाँ, किताब में डिफरेंट पन्ने प्रोसेस पलटाने के लिए टाइम बच जाएगा। थोड़ा बड़ा They just have to use the poster and try to remember them. हाँ, और सॉल्व वन एग्ज़ाम्पल, मिनिमम वन एग्ज़ाम्पल दे शुड नो व्हाट द वैल्यूज़ दे हैव टू पुट। Sometimes गेट डू लाइक चेंज द यूनिट ऑफ द थिंग व्हिच यू हैव टू डायरेक्टली यूनिट यूज़ पे इन द तो कुछ फॉर्मूला। ज़्यादा फोकस करता है गेट अगर ध्यान से हाँ, पेपर एनालाइज़ करे तो। हाँ, अच्छा, तो ये बताइए जो जैसे मान लो गेट के 3 सेक्शन हैं, तो इस बार हुँ। क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी अटेम्प्ट करने की? मतलब आप एप्टीट्यूड पहले ही करके कर देते हो, सेक्शन कॉमन सेक्शन में कितना किया आपने? मतलब क्या स्ट्रैटेजी रहती है और आपकी पेपर अटेम्प्ट करते टाइम? पेपर अटेम्प्ट करने लायक तो मेरे स्ट्रैटेजी यही रहती है कि सबसे पहले पूरा पेपर, जैसे आपके पास 3 घंटे है ना, तो आपको फ़ोकस ये होना चाहिए कि जो-जो मेरे को आता है ना, वो 2 घंटे में खत्म हो जाए। जैसे हुँ, आप पेपर पढ़ते हो ना, तो जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि वो आप पढ़े, आपको पता है कि ये मेरे को आ सकता है, पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपको पेपर गो थ्रू कर लेना चाहिए। राइट। ऐसा नहीं कि आप पढ़-पढ़ के कर रहे हो, यू हैव टू सॉल्व लाइक उसमें ईज़ी क्वेश्चन भी होते हैं, मीडियम क्वेश्चन भी होते हैं, हार्ड क्वेश्चन भी होते हैं। हुँ, तो आपको एम बनाना चाहिए कि मैं इतने क्वेश्चन में, जैसे मेरा इस साल का एम था कि मैं 62 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करके आऊँगा 65। हुँ, तो मैंने पेपर खोला, तो मेरे को लगा कि ये पेपर खोल के मैं एक बार स्क्रॉल किया, मैंने 45 मिनट्स के अंदर पूरा पेपर पढ़ लिया। हुँ, और जो एकदम बच्चों वाले सवाल होते हैं ना कि ये तो मेरे को आता ही है, तो ये फटाफट मैंने वो 45 मिनट्स में 30 क्वेश्चन्स के अराउंड कर दिया था कि ये तो या लास्ट ईयर से रिलेटेड है, या जैसे लिक्विड लिमिट वाला था, वो मेरे को पता था कि वो फ़ॉर्मूला डायरेक्ट लगेगा, वो 2 मिनट में हो गया। मैंने 45 मिनट्स के अंदर पूरा पेपर एक बार गो थ्रू कर लिया। तो मैंने पहले वो अज़्यूम किया कि मैं इसको कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। इसमें 62 क्वेश्चन जैसा आपका एम हो, वो अचीवेबल है कि नहीं है, पहले वो मैं देखता हूँ। हुँ, उसके बाद मैं सीरियल वाइज़ अटेम्प्ट करना चालू कर देता हूँ। फिर मैं वो लास्ट 2 घंटे में मैं पेपर कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर मैं उसके बाद क्या करता हूँ कि जो मैंने क्वेश्चन लगा था ना कि इस पे थोड़ा मैं फाइट करूँगा तो हो जाएगा। राइट। फिर वो मैं आधे घंटे में वो करता हूँ, जो मेरे पास आधे घंटे बचते हैं ना, मैंने वो न्यूमेरिकल रिवाइज़ करने में किया कि मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की थी। या क्योंकि यूनिट वगैरह का ध्यान बहुत रखना पड़ता है उसमें। हाँ, वो ध्यान रखना पड़ता है, कई-कई बार फ्लो में छूट जाता है वो। तो इसका बहुत फ़ायदा होता है, जो लास्ट में आप आधे घंटे न्यूमेरिकल्स को देते हो ना, तो मैंने 2 सवाल सही किए थे लास्ट में। मैंने पॉइंट्स की गलती कर दी थी कहीं, गेट कई बार करता है अच्छा, कि तो पूछता रिवीजन है में कि आपको 2 इसको गलतियाँ सेंस मिली अपनी? हाँ, मिल जाती हैं। ओह! 2 गलतियाँ मिल गई, मैंने सही किया था। क्लोरीन वाला सही किया था क्योंकि उन्होंने रेंज बहुत यहाँ कम की जितने थी। लोग देख रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि रिवीजन कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब समझ 2 सवाल में तो 4 नंबर हो गए वो एक तरह से। हाँ, तो वही है कि लास्ट में जो आप रिवीज़न करते हो ना, वो एकदम कूल होता है, आपको पता चलता है कि मेरा पेपर कंप्लीट हो गया, मैं बस हुँ, रिवीज़न कर रहा हूँ, तो आपका माइंड ना एकदम शांत होता है। फिर ना आप वो उसमें न्यूमेरिकल गलतियाँ जब आसानी से पकड़ दोबारा भी सकते हो आप। हाँ, तो वही है कि आप जो कर चुके हो ना, जैसे आपको जो चीज़ याद है, वो चीज़ वैसे याद रहेगी। आप जो रिवीज़न का टाइम है, वो मैं न्यूमेरिकल पे फ़ोकस किया था कि न्यूमेरिकल में मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की थी। हुँ, क्योंकि जहाँ न्यूमेरिकल में अगर आपको फ़ॉर्मूला आता है, सब कुछ आता है, तो आपकी गलती का एक ही स्पॉट रहता है कि आपने कहीं न्यूमेरिकल गलती तो नहीं की। राइट। तो वो मैंने लास्ट में फ़ोकस किया था, मेरे को 2 गलतियाँ मिल गई थी। मैं हर पेपर का मेरा यही रहता है कि मैं पेपर पहले गो थ्रू कर लेता हूँ। फिर मेरे को हार्डनेस लेवल पता होती है कि कितना हार्ड है ये पेपर, क्योंकि मैं कंटीन्यूअसली एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो मेरे को पता है कि ये पेपर इतना हार्ड है, ये इतना अचीवेबल है कि नहीं है।
राइट, तो उसके बाद मैं वो पेपर अटेम्प्ट करता हूँ। मैं ऐसा कोई सेक्शन पे अलग से फ़ोकस नहीं करता क्योंकि नंबर्स तो सारे काउंट होते हैं ना। राइट। जो और 2 टाइम का नंबर ऐसा है कुछ है नहीं, मतलब टाइम तो है, अगर देखा जाए गेट में जियोलॉजी टाइम, हाँ, टाइम गेट ये नहीं गेट कह में सकते टाइम कि बहुत पेपर मिलता है। छूट गया मेरा, छूटने का तो कोई चांस नहीं है उसमें। छूटने का आपके पास बहुत टाइम होता है, आप आधे घंटे रिलैक्स भी कर सकते हो अगर आप थोड़ा फ़ास्ट काम करते हो, राइट, गेट में आराम से। हाँ, जी, गेट में एनफ टाइम होता है, मैंने 3 बार दिया है, आप पेपर आराम से 65 क्वेश्चन्स होते हैं, आपकी स्लोएस्ट रीडिंग स्पीड भी होगी ना, तो भी आप सारे क्वेश्चन तो पढ़ ही लोगे और अटेम्प्ट तो कर ही लोगे अपने हिसाब से, आता है कि नहीं आता है। टाइम का तो कोई इश्यू पूरा नहीं 1 होता घंटा इसमें। आप रिवीजन के लिए भी निकाल सकते हो अगर आप ठीक-ठाक स्पीड से कर रहे हो। हाँ, ठीक-ठाक स्पीड से कर रहे हो तो आप रिवीजन के लिए आराम से एनफ टाइम निकाल सकते हो, पर पेपर हमेशा लास्ट में सबमिट करने से आधे से 40 मिनट ना आपके पास रिवीजन करने के लिए कोई-सा भी पेपर हो, मैं सबके लिए एडवाइस करता हूँ कि रिवीजन करने के लिए टाइम होता है, आप कुछ ना कुछ गलती फ्लो में कर ही जाते हो। राइट, कुछ भी कर लो आपसे हो ही जाता है, वो पेपर ऐसा तो ह्यूमन साइकोलॉजिकली ह्यूमन एरर डिज़ाइन में आ होता है। जाता है वो, किसी से भी हो हाँ, जाएगा। हाँ, वो डिज़ाइन ही ऐसे किया होता है उन्होंने, बहुत मेहनत से डिज़ाइन किया होता है। जी, हाँ, तो अभी जैसे तुम तैयारी कर रहे थे, तो कुछ हुँ, पहले टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगाई होगी, मॉक टेस्ट लगाए होंगे, तो मॉक टेस्ट में जो नंबर आते हैं तुम्हारे और इस बार जो गेट में मार्क्स आए हैं, तो क्या लगभग सेम ही रहता है वो? मतलब मैं टेस्ट सीरीज़ नहीं, की इम्पोर्टेंस जानना चाहता हूँ यहाँ से कि लगाना कितना इम्पोर्टेंट है, पहले से प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है, क्योंकि अब डायरेक्ट आप लगाने जा रहे होगे, आप हुँ। लगा ही नहीं रहे हो क्वेश्चंस, आपने वो एनवायरनमेंट में कभी पेपर ही नहीं दिया 3 घंटे का उससे पहले, तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने जब प्रिपरेशन चालू की थी इनिशियली तो मैंने करियर एवेन्यूज़ का मेरे दोस्त का अकाउंट था क्योंकि उसके पास था तो मैंने उसका एक बार यूज़ करके देखा तो इट वाज़ नॉट अप टू द मार्क। मेरे को वो टेस्ट सीरीज़ गेट के हिसाब से अप टू द मार्क नहीं लगी। फिर हुँ, मैंने उसपे प्रैक्टिस किया तो इट वाज़ क्वाइट हेल्पफुल टू गेट विद द ऑनलाइन एनवायरनमेंट। फिर मेरे को वो अप टू द मार्क नहीं लगी तो मैंने अपने सीनियर से प्रोगेट का मटेरियल लिया। मेरे को वो भी अप टू द मार्क नहीं लगा कि वो गेट के हिसाब से डिज़ाइन्ड है। तो फिर मैंने कुछ नहीं किया, फिर मैंने अपने जो गेट के पेपर्स थे ना, उनको ही मॉक टेस्ट बना लिया अपना। जो गेट के मेरे पास 25 इयर्स के पेपर्स थे और अ, जो यूपीएससी के सीबीआरटीज़ होते हैं ना, उनको ही मैंने अपना मॉक टेस्ट बना लिया था। तो मैं क्या करता था कि मैं बड़ा स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करता था, जैसे अपना जियोलॉजी का गेट का टाइमिंग फिक्स है कि वो सेकंड हाल्फ में देते हैं, सेकंड सेशन में। मतलब दू गेट के दूसरा दिन सेकंड हाल्फ सेशन फिक्स हो गया है, तो मैं उसी सेशन में प्रैक्टिस करता था। तो जैसे मैंने पढ़ लिया है सब कुछ, जैसे मान लीजिए मैं अ, दिसंबर तक मैंने सिलेबस खत्म कर दिया अपना, तो मैंने सब कुछ पढ़ लिया है एक तरीके से। फिर मैं 1 दिसंबर को सबसे पहले तो जो आईआईटी ऑर्गेनाइज़ करा रही है ना, उसके पेपर लगाता था। अब किसी भी आईआईटीज़ की देख लोगे तो मिनिमम 3 पेपर हर आईआईटीज़ के हो गए हैं। हुँ, आईआईटी दिल्ली 4 बार ऑर्गेनाइज़ करा चुकी है, मद्रास 4 बार ऑर्गेनाइज़ करा चुकी है, तो हर आईआईटीज़ का ना एक एक और है कि जो ऑर्गेनाइजिंग आईआईटीज़ होती है ना, उसका गेट का फंडा सेम होता है। जैसे आप पिछले साल आईआईटी मद्रास ने किया था ना, तो उसका पेपर हमेशा ईज़ी और बेसिक्स पे फ़ोकस होता है। आईआईटी दिल्ली का होता है कि न्यूमेरिकल्स पे फ़ोकस होता है। तो आप इस ना बार ये देखा सॉर्ट भी आउट कर सक हाँ, इस साल भी उन्होंने न्यूमेरिकल्स बहुत दिए, तो आप ना पहले तो ये सॉर्ट आउट कर लो कि जो मेरे 4 पेपर हैं ना, वो मेरे लैंडमार्क्स हैं। मतलब ये मेरे लैंडमार्क्स हैं। आप मॉक टेस्ट भी फ़ॉलो कर सकते हो, कुछ भी फ़ॉलो कर सकते हो, पर मैं एडवाइस यही करूँगा कि जब तक आपको लगे नहीं ना कि ये अप टू द मार्क है, आप एक बार गेट देते हो ना, तो आपको आइडिया लग जाता है कि सामने वाला पेपर अप टू द मार्क है कि नहीं है और मेरे को उससे कितना बेनिफिट्स हो सकता है। हाँ। तो पिछले साल मैंने दिया था, तो मेरे को अप टू द मार्क प्रिपरेशन नहीं लगी थी, पर इस साल मैंने मॉक टेस्ट गेट के पेपर्स को ही बना लिया था और जो जो आईआईटी ऑर्गेनाइजिंग आईआईटीज़ के पेपर्स थे ना, उनको मैंने लैंडमार्क बना लिया था अपना, कि मेरे को इन पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना है और उसको मैंने मंथ में 4 हफ्तों में बाँट दिया कि हर वीकेंड को मैं वो 1 पेपर लैंडमार्क वाला लगाता था। बाकी हफ्ते में 2 पेपर मैं गेट के लगाता था और देखता था मेरे वीक पॉइंट्स क्या हैं। मैं अपने अपने वीक पॉइंट्स हमेशा राइट करके रखता था। आपको मैं दिखा सकता हूँ, जैसे ये ये मेरा लास्ट का है, ये मैंने लास्ट रिवीज़न किया था ना, तो ये वीक पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये। मैं अच्छा, हर आप पेपर के बना वीक बना के पॉइंट्स रखते हो। हाँ, हाँ, बना के रखता हूँ कि मेरे पेपर में ये वीक पॉइंट्स हैं, मैं यहाँ बार-बार उनके जो बच्चों को उलझाने के तरीके होते हैं ना, वो फिक्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो मैं हर वीक पॉइंट्स आप कोई सा भी पेपर दे रहे हो, आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप कुछ भी दे रहे हो, आप लास्ट में जब आपने जो तैयारी की थी, वो फिर आपने ना
2 कॉलम बनाता था मैं। एक तो मेरे को आता था, मैं क्यों नहीं कर पाया वो। मेरा मेरा गलती क्या था कि जो मैं कहीं नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने टॉपिक पढ़ा था, सब कुछ किया था, वो सवाल मैं क्यों नहीं कर पाया। वो मैं क्वेश्चन पूछता था। और तीसरा कि ये टॉपिक तो मेरे को लेक्चर नोट्स वगैरह कहीं पढ़ाया नहीं गया था, तो मैं उसके लिए इंटरनेट सर्च करता था कि इन्होंने कहाँ से देने की कोशिश की है, फिर मैं उसको पढ़ता था। जैसे रिवर्स से रिलेटेड आज से 10 साल पहले सवाल आया था, हमें रिवर्स या मेरे को रिवर्स का कोई आइडिया नहीं था। फिर मैंने उसको लिखा, उसके लिए अलग से नोट्स बनाया, उसको पढ़ा, अच्छे से किया, फिर ऐसे करता था मैं। हर पेपर का ये स्ट्रैटेजी होता था। एक पेपर किया, उस पे 2 दिन मैं वर्क करता था उस पेपर पे कि मेरे क्या वीक पॉइंट्स हैं और ये पोर्शन मैंने पढ़ा था, तो मैं इसको क्यों नहीं कर पाया, मतलब मैं उसमें पढ़ने में क्या गलती कर रहा हूँ। तो ऐसे करके मैं पूरा वो करता था। चाहे मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, चाहे मैं गेट के पेपर्स दे रहा हूँ, मेरा स्ट्रैटेजी यही रहता है। और मॉक टेस्ट का फ़ायदा ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्लो में रहते हो। मतलब आप कोई भी पेपर दे रहे हो ना, तो मॉक टेस्ट से आप फ्लो में रहते हो कि मेरे अ, अपनी स्ट्रैटेजी मेंड कर सकते हो आप। जैसे मैक्सिमम आउटपुट चाहिए आपको मिनिमम टाइम में, हमेशा यही इक्वेशन होनी चाहिए किसी भी मॉक टेस्ट से यार। तो आप मैक्सिमम फ़ोकस ये करो, जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया है ना, तो मॉक टेस्ट से आप ये है कि आप फ्लो में हो। आप आउट ऑफ द इक्वेशन नहीं हो। आपको इक्वेशन में रहना है, तो आपको हमेशा उसको फ्लो को बना के रखना पड़ेगा। राइट। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप पहले से उस मोड में रहो, आपको पता रहे कैसे एग्ज़ाम है, कैसे देना है और एक हुँ। उस तरह का एक आपका माइंडसेट हो जाएगा कि भाई इतने क्वेश्चन्स आते हैं, ऐसे-ऐसे टाइम डिवाइड करना होता है, ऐसे-ऐसे फ़ोकस करना होता है, यहाँ गलतियाँ करते हैं, हाँ। यहाँ नहीं करते। वो सबकी इक्वेशन अलग होती है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं सब। राइट, कई वो होते हैं कि बस सीरियल से अटेम्प्ट करना चालू कर देते हैं। तो वो है कि मॉक टेस्ट से आपको पता रहता है कि मेरा मैक्सिमम आउटपुट किस पॉइंट पे आता है। राइट। तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि हम लोग के जो मॉक टेस्ट बनते हैं, हम लोग जो मॉक टेस्ट बनाते हैं अपने उसमें, वो सारे आईआईटी से जो एवरेज है कि भाई कितने हुँ। किस पार्ट से कितने क्वेश्चन्स आ रहे हैं, उसी रेशियो में हम लोग मॉक टेस्ट बना रहे हैं। तो इस बार इस समय मॉक टेस्ट का काफ़ी हाँ। ज़्यादा फ़ायदा हुआ हम लोगों को। ये तो ये जैसे ये एनालिस्ट देखो आप, इसमें तो हमने एनालाइज़ करके रखा है कि किस ईयर से कितने टॉपिक आ रहे हैं। ठीक, लास्ट 5 इयर्स का हमने कंपाइल किया है। तो इस कंपैरिज़न में आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि हर टॉपिक से जैसे स्ट्रक्चरल आप देख रहे हो 2015 में उसमें 19 मार्क्स का क्वेश्चन आया और हर बार ज़्यादा ही आया। तो इस हाँ। तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके और इस तरह से एवरेज लेके हम लोग मॉक टेस्ट तैयार करते हैं। तो जिससे अगर कोई भी आप क्वेश्चन करते हो या कोई भी आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको एटलीस्ट आइडिया रहता है कि हाँ, इस टॉपिक को मुझे ज़्यादा पढ़ना है, इस टॉपिक को कितना पढ़ना है, कितना टाइम देना है। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है स्ट्रैटेजी में। हुँ। तो वही है। आपने एनालिसिस अच्छा किया, मेरा भी एनालिसिस सेम है ऐसा कुछ। मैंने भी बना रखा है। हाँ, ये ज़रूरी है क्योंकि अगर हाँ। आपको लोग बच्चों को मतलब एस्पिरेंट्स को आपको कुछ देना है, तो वो प्रोडक्टिव होना चाहिए, राइट? उसको हाँ, उनको कोई वो हेल्प होना मैंने चाहिए उससे। सेम एनालिसिस मैंने भी एक कॉपी पे बना रखा है। स्ट्रक्चरल के लिए मैंने 3 बुक प्रेफ़र की थी। क्योंकि इस आप वो देखोगे स्ट्रक्चर था। स्ट्रक्चरल और जियोफिज़िक्स ले लो आप, स्ट्रक्चरल जियोफिज़िक्स और कुछ टॉपिक और ले लो, तो ऑलमोस्ट 30-40% मार्क्स कवर कर लेते हैं। हाँ, तो उसको आप किसी भी हालत तो में छोड़ नहीं सकते। छोड़ो आप। गेट में आया हुआ अगर इस सब्जेक्ट से भी सवाल है ना, आप छोड़ तो बिल्कुल नहीं सकते। हुँ, आपको पता नहीं है वो किस पे अलाइन करेगा, क्योंकि वो पेपर बड़ा बायस्ड बनाते हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ देंगे। वो कोई एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट से ना नंबर ऑफ क्वेश्चन्स हमेशा ज़्यादा ही रखेंगे। हुँ, आप किसी भी गेट का पेपर एनालाइज़ कर लें आप पाएँगे कि किसी एक टॉपिक या किसी एक बैकग्राउंड से ना वो हमेशा नंबर ऑफ क्वेश्चन्स ज़्यादा रखेंगे। हुँ। मोस्ट ऑफ द टाइम वो नॉर्मल से स्ट्रक्चरल और जियोफिज़िक्स के आस-पास ही कंसंट्रेटेड रहता है। हाँ, कंसंट्रेटेड जैसे वहीं पे रिमोट आ जाता है। सेंसिंग जैसा है, उसमें आपको 1-2 सवाल ही मिलेगा। हाँ, हाँ, वही है। हुँ, वो हमेशा फ़ोकस रहते हैं। जैसे इस साल वो ना जियोलॉजी के पेपर में उन्होंने 3 फिज़िक्स के सवाल डाल दिए थे। राइट। मतलब हाँ, वो ह एक तो जो जो ब्लॉक ब्लॉक नीचे गिरने गिर वाला रहा सा है, हाँ, वो था। फिर वो इलेक्ट्रोड के डिस्टेंस वाला डाल दिया था उन्होंने। तो वो ज्योमेट्रिक वाला। हाँ, ज्योमेट्रिक वाला। और फिर पिछले साल भी उन्होंने जियोफ़िज़िक्स के वो फ़ोकस विलीज़ इक्वेशन का डाल दिया था। राइट। टाइम वो एवरेज फ़ोकस इक्वेशन हो गया। हाँ, या हाँ। हुँ। तो वो फ़ोकस कर रहे हैं, मतलब वो न्यूमेरिकल्स चाहते हैं कि आप जितने भी जियोलॉजी में न्यूमेरिकल्स पार्ट बहुत कम होते हैं। मतलब अगर कोई एस्पिरेंट ये सोचता है कि मैं न्यूमेरिकल छोड़ के चला जाऊँ तो एकदम गलत बात तो है। वो मतलब ऐसा हो ही नहीं इम्पॉसिबल है। सकता कि आप गेट में आस-पास भी हो। हाँ, हाँ, इम्पॉसिबल है वो। हुँ, आप न्यूमेरिकल्स को आपको हार्ड लगता है तो आप कोचिंग लीजिए,
ऑनलाइन ट्यूटरिंग देखिए, कुछ भी कीजिए, पर आप ना आप उसको सोच रहे हैं छोड़ कि नहीं न्यूमेरिकल आप उसको किसी कीमत पर अवॉइड कर ही नहीं सकते। सकते। जी। So, is there anything which you would like to share with the students? Something which you liked about geology concepts? About geology concept, I have like the most important section I would like to appreciate now is discussion and doubt clearing. The thing is that you can find everything on any other platform. Video lectures are on YouTube and every other thing. But the geology concept has provided a discussion and doubt section. Now, I think that is the most important thing for any examination preparation. And most of the coaching institutes and other, they miss this thing. Online programs, they miss these things, doubts and discussion part. I would appreciate like this is the like every aspirant now like can learn anything from there. But if he has some doubt, now geology people is very limited. Okay, and most of the time they don't know from like द थिंग इज दैट ना मेरे को कई बार पता नहीं चलता था कि ये सवाल आया कहाँ से, तो मेरे को ये रहता था कि मैं पूछूं किससे, क्योंकि इंटीग्रेटेड 13 लोग होते हैं, उसमें से 7-8 लोग जियोलॉजी छोड़ चुके होते हैं थर्ड ईयर तक आने आने तक। तो मेरे पास नंबर ऑफ कुल जनता 7 और 8 पीपल के अराउंड रहती थी। तो मेरे को हमेशा ये लगता था कि कई बार मेरे को सवाल गेट पे लगता था कि ये आया किस टॉपिक से मेरे को नहीं पता। जैसे पिछले से पिछली बार होलोसिमेट्री का आया था, तो मेरे को नहीं पता था वो किससे आया। फिर मेरे को ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला जिस पे मैं डिस्कस कर सकूँ जियोलॉजी को लेके। तो फिर मैं फेसबुक से रैंडम लोगों को मैसेज करता था, कोई बीएचयू से होता था या कोई जिसको मैं कभी मिला था ट्रेनिंग में या ऐसे, उनसे मैसेज करके पूछता था कि इधर से आया। तो कई बार पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता था, कई बार उनको भी नहीं पता होता था। तो मैं ये जो आपका डिस्कशन एंड डाउट क्लियरिंग है ना, इसको मैं अ, मतलब स्टार करूँगा, ये आपके जियोलॉजी कांसेप्ट का स्टार परफॉर्मर है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और हम चाहेंगे कि इसमें और ज़्यादा लोग आएँ और डिस्कशन हेल्दी हो, ताकि जिन लोगों को नहीं पता है उनको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। हाँ, राइट? Actually, our platform, मतलब from our understanding, the platform is very good as a community, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही talented लोग हैं। तो ऑल इंडिया हाँ, रैंक 7, 3, 40, 50 इस टाइप के लोग जो हैं, जो वहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इवन जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो खुद नेट क्वालिफाइड हैं विथ वेरी गुड रैंक्स, एंड उनकी भी गेट में पहले 25 रैंक और इस मतलब एक्सेप्शनल रैंक्स लाए हुए हैं। तो इट बिकम्स लाइक अ कम्युनिटी वेयर इन किसी ना किसी को तो हमारे इंस्ट्रक्टर्स में बहुत ही क्लियरली वो टॉपिक का मास्टर होगा, तो वो उन डाउट्स को क्लियर कर ही देगा। So जो हाँ, डिस्कशन प्लेटफॉर्म है, you have rightly pointed out कि if the student has that motivation to learn, वो खाली हाथ नहीं जाएगा, he will understand the topic. yeah. तो लास्ट आप जो बताना चाहते हो स्टूडेंट्स को कि मतलब डरना नहीं है, करते रहना। तो एक तो आपने साफ-साफ बता दिया कि डिसिप्लिन से इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, राइट? आपको हाँ, रेगुलर आपको अपने आप को उस मोड में रखना होगा कि आपको प्रिपरेशन करना है, राइट? हाँ, और उसी से क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस आप आता है। सेल्फ लोथिंग हाँ, कॉन्फिडेंस उसी से बिल्ड होगा। अगर आप सेल्फ पिटी, सेल्फ लोथिंग कर रहे हो, तो यू आर वेस्टिंग योर ओन टाइम। आपका टाइम लिमिटेड है। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो ना, तो आपको बाहर की कोई चीज़ मोटिवेट नहीं कर सकती। राइट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो, तो आपको बाहर की चीज़ टेम्परेरी जुगाड़ होता है वो काइंड ऑफ। कि आप मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, आप जोश में आ गए, आज तो मैं फोड़ दूँगा, फिर अगले दिन आप उसी लाइन पे आ जाओगे। आप एक मॉडरेट शेड्यूल फिक्स करो अपने लिए, पर आप जब एक बार फिक्स कर लेते हो तो स्टिक टू द शेड्यूल। सेल्फ लोथिंग, सेल्फ पिटी, आप खुद का टाइम वेस्ट करोगे। कुछ लोग एक्सट्रीम पे चले मोटिवेशनल जाते हैं कि वो अपना शेड्यूल ही इतना टाइट बना देते हैं कि वो खुद ही फॉलो नहीं कर पाते। हाँ, तो एक मॉडरेट थोड़ा-सा होना चाहिए हमेशा बैलेंस होना शेड्यूल। चाहिए। हाँ, हाँ, बैलेंस्ड होना चाहिए आपके पास, सब कुछ करने का टाइम होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मतलब मैं क्या स्पिरिचुअल थिंग्स में बड़ा बिलीव करता हूँ, मेरा खुद का वो है, तो तीनों पार्ट आपके बैलेंस होने चाहिए, तभी आप किसी चीज़ में फ़ोकस कर सकते हो। जैसे आप दिन भर काम करोगे ना, हुँ, तो अगले दिन आप ओवरवर्क हो जाओगे, या आप एग्ज़ॉस्टिंग हो दिन भर जाता सोओगे तो अगले दिन आप ओवर स्लीप करोगे। तो वही है कि हर चीज़ मॉडरेट में सही रहती है। है। राइट, और एस्पायरेंट्स के लिए ये है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको गेट के लिए तैयारी करनी है, तो
यू जस्ट लग जाओ। देयर इज नो अदर ऑप्शन कि मैं आज से नहीं कल से तैयारी करूंगा। अगर आपको रिजल्ट जिस दिन मान लीजिए 16 मार्च को रिजल्ट आया, आपको पता है कि मेरा इससे कुछ नहीं होगा, तो 17 मार्च से आपको अपनी स्ट्रेटेजीज वगैरह सब मेंड करने होंगे और आपको लग जाना होगा लिटरली, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इस बार एक नंबर पे 8 लोग हैं, एक नंबर पे 8 लोग हैं। इस बार का इक्वेशन ये चल रही है, अगर आप 70 से नीचे हो राइट। आपको एक्सेलेंस परफॉर्मेंस देनी ही पड़ेगी। और किसी भी पार्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, स्पेशली न्यूमेरिक्स। वो हाँ, आप वो गलती तो कभी मत करिएगा कि अगर आप गेट में सवाल आया तो ये बहुत ज्यादा हार्ड है, मैं छोड़ जाऊँ। आप कुछ भी करिए, किसी से भी पूछिए, बट आप वो पार्ट कवर करके जाइए। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आपको जो इक्वेशन उसमें यूज हुई है वो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड याद करके चले जाइए। लास्ट स्कोप यही है कि अगर आपको नहीं मिल रहा है, कहीं से कुछ नहीं हो रहा है, तो वो वर्ड टू वर्ड याद करके चले जाइए। यहाँ तो हम आपका बोलेंगे कि आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप जियोलॉजी काउंसिल के पास आ सकते हैं, हम जरूर आपको हाँ, बता ये देंगे। डिस्कशन और डाउट फॉर्म यूज कर सकते हैं। ये बड़ा मेरे को यूनिक कंसेप्ट लगा, ये ना होना चाहिए हर सब्जेक्ट के लिए, डिस्कशन फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि कई कई बार पेरेंट्स को ना आइडिया नहीं लगता है कि ये हो क्या रहा है, सवाल में हो क्या रहा है, आया कहाँ से है। राइट। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। और अपन मतलब खुद की कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्रेस मेरे को लगता है सबसे ज्यादा होती है, एक दूसरे क्योंकि से वो सीखने का आपके मौका मिलता है और कई हाँ ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, कुछ नहीं, हाँ, कई लोग वो उसमें आपके सेम लेवल पे, आपके उनका माइंडसेट सेम होता है, वो सेम कंडीशन में होते हैं आपके जैसे, तो वो आपकी सबसे ज्यादा अच्छी हेल्प कर पाते हैं, राइट। मुझे ये लगता है। जी। ओके देन, फिर कांग्रेचुलेशंस अगेन एंड थैंक यू फॉर टॉकिंग विद अस। थैंक यू। टाइम निकाला आपने। All the best for your future. ओके, थैंक वी यू विश सर। यू ऑल द बेस्ट। अच्छा, तो थैंक यू वेरी मच एंड विल सी यू समटाइम। थैंक यू सर।